بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پچھلے ولاگ میں آپ سے میں نے کچھ ضروری باتیں شیئر کی تھی جس کے ٹائٹل میں لکھا ہوا تھا کہ جھوٹ اور بلف کا زمانہ۔ آج کا جو ولاگ ہے اس کے متعلق جو میں باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ضروری ہیں کہ دنیا میں ہم کس طرح حقیقت کے ساتھ جینا سیکھیں اور اصل زندگی کیا ہے اور اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، جو ہم ادھر ادھر کی دوستیاں یاریوں میں وقت فضول ضائع کرتے ہیں اور بعد میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی اس میں سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں فضول کی دوستیاں یاریاں لگائی، اپنا قیمتی وقت تباہ و برباد کیا اور زندگی میں ہم دوسرے انسانوں دوستوں کی نسبت پیچھے رہ گئے۔ آپ نے اس ٹائٹل کو پڑھ لیا ہوگا دیکھتے ساتھ، دوستی میں دھوکہ۔ جی ہاں، یہ ایسی کارگزاری ہے جو تقریباً 100 میں سے ہر دوسرے انسان کو پیش آتی ہے زندگی میں۔ اگر حقیقت میں دوستی کے بارے میں بات کی جائے، دوستی بہت عظیم رشتہ ہے اور وہ انسان غریب ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوستی میں انسان محبت کو پاتا ہے، پیار کو حاصل کرتا ہے، وفاداری نبھاتا ہے، ہمدردی پیش کرتا ہے اور اچھا دوست انسان کی زندگی میں سرمایہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آج کل کے ماحول پر نظر دوڑائی جائے، قریب سے چیزوں کا مطالعہ کیا جائے، دوستیوں کا مشاہدہ کیا جائے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ آج کل کی جو دوستیاں یاریاں ہیں، خصوصاً یونیورسٹی میں جو چل رہا ہے کلچر، وہ دھوکے کے اوپر مبنی ہے۔ آج کے زمانے میں جتنی بھی دوستیاں یاریاں ہیں وہ مقصد کے لیے کی جاتی ہیں، اور جب انسان اپنا مقصد اچیو کر لیتا ہے تو اپنے ہی دوست کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتا جاتا ہے دوسرا دوست، اور انسان اتنا آج کل کے دور میں مفاد پرست، مطلب پرست ہو چکا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میرے اپنے ہی دوست جو میرے ہم سفر ہیں، جو میرے لیے محسن ہیں، وہ ان کی دوستیاں یاروں کو بھی ٹھڈا مارتے ہوئے آگے چل پڑتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں اچھا دوست حاصل کرنا ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے۔ یہ کارگزاری میری زندگی کی نہیں، سب انسانوں کی ہے۔ آج کل کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے، نوٹو ہے، تو دوست سلام کرتا ہے آپ کے پیچھے چل کر آتا ہے۔ اگر آپ کی جیب میں ایک کوڑی نہیں، ایک پیسہ سکہ تک نہیں، تو دوست آپ کو دور سے ہی گڈ بائے کہہ دے گا۔ آج کے زمانے میں جو دوستیاں یاریاں پل رہی ہیں اس میں مطلب ہے، مفاد ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے، غیبت، چغلیاں، منافقت سے بھری ہوئی دوستیاں ہیں۔ تو کیسے ہم زندگی میں سکون سے رہیں، کامیاب انسان بن سکیں؟ اس کا بہترین کلیہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے یاری لگاؤ اور اللہ کے نیک بندوں سے یاریاں لگاؤ جو 5 وقت کے نمازی ہوں، جن میں دنیا کی حوث کم ہو، جن میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ کے قریب ہوں، جن میں ایمانداری ہو، جن میں منافقت نہ ہو، جن میں کسی قسم کے ایسے جراثیم نہ ہوں جن کا مقصد آپ کو ذہنی طور پر ٹونٹ کرنا ہو، ٹیز کرنا ہو، کوئی شرارت کرنا ہو۔ ایسے انسانوں سے دوستیاں یاریاں لگا لینے میں ذرا بھی دقت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے دوست ہزاروں لاکھوں میں سے اکا دکا ملتے ہیں۔ تو
तो अच्छे दोस्त तलाश करने पड़ते हैं, दोस्ती का रिश्ता खुद निभाना पड़ता है। लेकिन आपको खुद अच्छा इंसान होना चाहिए, आपके अंदर शराफत होनी चाहिए, दोस्ती की हया होनी चाहिए, दोस्ती का तकद्दस और इसका रिश्ते का भरम रखने का जज्बा होना चाहिए। आप खुद सिंसियर हों, खुद अच्छे हों, खुद खुद आपका अखलाक अच्छा हो, खुद आपके अंदर दोस्ती का जज्बा कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन अगर आप ही धोखा खा जाएं किसी दोस्त के थ्रू, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। और शुरू में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक इस ज़ख़म पर मरहम रख देते हैं और इंसान को और अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। आपकी मंज़िल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। आपका ज़िंदगी का मिशन और ऑब्जेक्टिव गोल ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों के काम आएँ, अपने घर वाले, माँ बाप, बहन भाई और रिश्ते, अजीज़ व अक़ारब, दोस्तों, सब के काम आए। कोई आपके साथ ज़्यादती करता है, आपको धोखा दे के चला जाता है, आपको ज़हनी तौर पर टॉन्ट करता है, टीज़ करता है, शरारत करता है, ऐसे दोस्त से दूर हो जाएं। और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशंस की, आर्गूमेंट्स करने की। अपना रास्ता, अपनी मंजिल, आप अपनी सिमत को सीधा करें, सीधा रखें और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना शुरू करें। और कभी भी आप अपने अंदर गुस्से के जरासीम को पैदा मत करें। अपना गुस्सा पॉजिटिव एनर्जीज पर लगाएं, अपने काम पर फोकस करें, दूसरों के ऊपर फोकस करना छोड़ दें। तो दोस्ती यारी में एक दूसरे का इस्तेमाल करना आजकल बहुत आम सी बात हो गई है। अगर आपको ये भी महसूस होता है कि चंद दोस्तों की महफिल में आपको ज़लील और रुस्वा किया जाता है, आपको टॉन्ट किया जाता है, टीज़ किया जाता है, आपसे लोग, कुछ दोस्त ऐसे भी स्टाइल में बात करते हैं कि आपसे बात करना छोड़ देते हैं, आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। वो ये समझते हैं कि हम लोगों की वैल्यू ज़्यादा है, ये खुद हमारे पास चल के आए, ये हमारे नीचे लगा रहे, हम हैं तो इसकी वजह से दोस्ती चल रही है, अगर हम नहीं हैं तो ये किसी कौड़ी का मोहताज नहीं। यानी किसी भी लिहाज से, यानी ये आदमी जो है, ये इंसान है, ये नाकाम है, हमारी वजह से ये कामयाब है, हम इसके ऊपर हैं। दोस्ती में तो तकब्बुर गुरूर होता ही नहीं है। तो दोस्तों को दिल से लगाना, दिल से चाहना, मोहब्बत करना असली दोस्ती की निशानी है। लेकिन आजकल के इस ज़माने में मुनाफ़िक़त की दोस्तियाँ, यारियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि दोस्ती में धोखा ही धोखा नज़र आता है। इस धोखे से कैसे बचें? से बचने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, अपने साथ प्यार करना शुरू करें, अल्लाह से दोस्ती लगाएं, अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती करें। और आप अपनी स्ट्रगल को, अपने पैशन को, अपने काम को, इसका जज्बा इतना बढ़ा लो कि आपको इर्द गिर्द के माहौल की परवाह ना हो। अगर आप खुद अच्छे हैं तो अच्छे इंसान, अच्छे दोस्तों की शक्ल में आपको पाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे मशवरा लेंगे, आपकी एडवाइस सुनेंगे, हर तरह से आपके साथ में मेल मिलाप करेंगे, आपके साथ दोस्ती करेंगे। तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल करता है, मैं आपके किसी दोस्त से आप बात करना चाह रहे हो, लेकिन वही दोस्त आपको मियाँ मिट्ठू बना रहा हो, आपको टेस्ट कर रहा हो, चेक कर रहा हो, और आपका फ़ोन ना उठा रहा हो, आपसे बात ना कर रहा हो, या आपकी किसी भी बात को आप वो गलत नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ले गया हो और आपसे बात करना छोड़ गया हो, ऐसे दोस्तों की यारी पर ठुड्डा मारो। क्योंकि ऐसे जो दोस्त होते हैं, जो गुफ्तगू नहीं करते, जो आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं, जो आपको मेंटली तौर पर टीज़ करते हैं, चेक करते हैं, जो अपने आप को समझते हैं हम सबसे ज़्यादा मुखलिस दोस्त हैं, ऐसे दोस्त नहीं होते, धोखे का सामान होते हैं। और इस धोखे के सामान से दूर हो जाना चाहिए और हमेशा अपने साथ खुश रहना सीखो,
किसी की बातों में मत आओ। अपने आप के अंदर एक खुद यकीन कामिल पैदा करो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ अपनी स्किल्स के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, अपने जज्बे और काम और मेहनत के थ्रू। तो लिहाजा आप इर्द गिर्द की जितनी भी फजूल दोस्तियाँ यारियाँ हैं इसको छोड़ें, अच्छे दोस्त बनाएं और अच्छे दोस्तों को अपने साथ रखें। यही काफ़ी है। ये लाज़मी नहीं है कि हर रास्ते में जाने वाला इंसान आपका दोस्त बन जाए। अच्छे दोस्त चंद एक होते हैं और ऐसे दोस्त सरमाया होते हैं। इनको अपने दिल और गले से, सीने से चिपकाए रखना चाहिए और ज़्यादा दोस्ती की भीड़ में जाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि आज कल की जो दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं किसी भी माहौल में, खा वो बचपन से भी पली हों, जवानी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, स्कूल कॉलेज, जब भी जितनी भी हैं किस्म की दोस्तियाँ यारियाँ, इसमें पलफ है, इसमें धोखा है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है। एक दूसरे का इस्तेमाल किया जाता है और एक दूसरे को टीज़ टॉन्ट किया जाता है और एक दूसरे से के दोस्तों के बारे में आगे बढ़ने की रेस का एक 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 कीड़ा सा जिसे कह लें, एक शैतानी कीड़ा जो हर जगह इंसानों में पाया जाता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं दूसरे से अफसल हूँ। ये तकब्बुर में आता है। दोस्तों कभी गुरूर तकब्बुर रखते नहीं हैं। दोस्तों में किसी किस्म की ऊंच नीच नहीं होती, बराबरी होती है, मसावात होते हैं। और अच्छे दोस्त हमेशा अपने आप को बड़ा नहीं समझते, उनमें उनका ज़रफ़ बड़ा होता है। वो बड़े किसी भी आली मकाम स्टेटस पे हो, पैसे वाले हों, उनके अंदर आजी होती, इनकिसारी होती है। और जो धोखे वाले मुनाफिक दोस्त होते हैं, इनमें दुनिया की मोहब्बत होती है, इनमें आगे बढ़ने की हिवस होती है और इर्द गिर्द के जितने भी इंसान हैं, दोस्त हैं, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा अफजल हैं, हमारी औकात सबसे बड़ी है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, दुनिया हमारे जूती के नोक के नीचे आएगी और सब हमसे काम लेगी, हमसे यारी लगाएगी, हमसे दोस्ती करेगी। ऐसी दोस्ती नहीं होती, दुनिया परस्ती होती है। लिहाजा जो दोस्ती में धोखा है, इससे बचने का बेहतरीन रास्ता ये है, इत्तेदाल पसंद हुआ जाए और मियाना रवि से पेश आ जाए। हर टाइम अपने ऊपर दोस्ती का जो भूत है इसको सवार मत करो। अपनी ज़िंदगी को खुशी से जियो, हिम्मत से जियो, दलेरी से जियो और आगे बढ़ते जाओ। इंशाल्लाह एक दिन दुनिया आपके कदमों के नीचे होगी, आप मुकद्दर के सिकंदर होगे और दुनिया में इंशाल्लाह आप इज़्ज़त कमाओगे, पैसा कमाओगे, शोहरत कमाओगे, दौलत कमाओगे। और शर्त इसकी ये है, आप में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।